First of all, welcome to Astrodiet Masterclass. This is the masterclass which is very common subject. Food is the one thing which we daily eat, and at homes you can see हम लोग बहुत सोचते हैं खाने के बारे में. सुबह क्या बनाएं, शाम में क्या बनाएं, इस समय क्या खाएं, क्या टिफिन में ले जाएं. So today I am going to give you some clues so that you can make your food as a remedy based on what you are going through. Okay. Most of you already know me, but there are some new faces. So I will give you my little introduction. I'm Upma Srivastav, astrologer with the experience of 20+ years. I love to give classes, workshops on healing with colors, astronumerology for money, yantra, and many other modalities. But I have a love towards astrology. So this is my choice of subject. I will keep speaking in Hindi and English ताकि दोनों तरह के लैंग्वेज की जो लोग जुड़े हैं आज, both can understand these things easily. I had muted everyone, and if you have anything to say, you can message in the group or you can message in the chat. First, I will complete what I want to share with you. Then I will answer your queries. So, when you had seen my first post related to what is Astrodiet, I hope you must have thought about Astrodiet might be something related to health. Yes, it is related to health, but not only for health. It is for complete all the areas of the life, because astrology helps in all the areas of life, and the food we eat at least 3 times in a day, we can do some remedies, because each food item is represented by one planet. The combination of zodiac sign and food is the Astrodiet. In Vedic astrology, we have the 9 planets, and based on the movement of 9 planets in the 12 zodiac sign, we come to know as an individual what is the one particular sign for you. Like 12 हमारे राशियां हैं in general. जब all these 12 signs को combine करके बोलते हैं, that becomes the zodiac. But when I'm talking about yourself only for one individual, then I will take your date of birth, time of birth, place of birth. According to these birth details, I will make a chart for you, and according to that, जो भी उस समय की planetary positions रहेगी in the sky, the birth chart will become the screenshot of that. Now, whatever sign is moving on the head at that time, that particular sign will become your rising sign, ascendant sign, or lagna in Hindi language. तो चाहे आप लग्न बोलो, ascendant sign बोलो या rising sign बोलो, तीनों का मतलब एक ही है कि that is the one first key sign which represents your physical body, your overall personality, and it indicates about all the areas of life. And in Hindi we say, जैसा खाए अन्न वैसा बने तन. So the food we eat can shape your destiny.
That's why food is so important. Now, if you know any food or any spice is governed by which planet, then you will be able to increase the intake or decrease the intake of that particular food. So before going to that, I would like to share one more thing कि हमारा जो खाना होता है food, that comes under the 3 categories. And these 3 categories are Sattvic, Rajasic and Tamasic. The same way, the all 12 zodiac signs are come under these categories, Sattvic, Rajasic and Tamasic. If you can match, like your zodiac sign is represented by Sattvic category and you are having the Sattvic kind of food, then it will become in the alignment. But if your zodiac sign, let's say your zodiac sign is Taurus, then what will happen? Because Taurus sign is represented by Rajasic quality. And now you are taking the food which indicates the Sattvic quality. It will be a mismatch. Then what will happen? Sometimes you will be generous and sometimes you will feel like I'm having money issues. You will get the money, but before you can save, you will spend it. When there is a conflict in between these qualities, means your zodiac sign and the food you are taking, if it is quite often, if it is in a moderate quality, it is good कि आपने कुछ समय खाया, ठीक है, बट आप लगातार एक ही तरह का खाना खा रहे हैं तो फिर वो उस तरह की क्वालिटीज बढ़ाता है, जैसे कि तामसिक क्वालिटी. अब तामसिक क्वालिटी जो है, तामसिक मीन्स the food which is cooked and eaten after 3 hours. तो fresh food है, but like in many homes, the cook comes in the morning and she cooks for the lunch, dinner, everything. You just take out from the fridge and eat. Now that fresh fruit will also come under the Tamasic category. Saturn planet rules over Tamasic category, and Saturn indicates about restrictions, delays, lethargy. So what will happen when we are consuming these kind of food? Subconsciously, we will keep inviting all these qualities in us. Gradually, what will happen? We will say, why I am not able to get the increment? Why people are not giving me appreciation? क्योंकि जब आपका तमस बढ़ेगा तो आपको जो चीज लाइफ में चाहिए, it is not easy to achieve. तो भले चाहे फ्रेश फूड है, but when it is cooked, जब भी वो खाना बनता है, immediately if you are eating, then it will be in a sattvic category. पर जितना डिले होता जाएगा, and after 3 years it is complete tamasic. The rajasic food is the food which have lot of gravy, rich kind of food, like खूब अच्छा तरी वाला खाना जिसमें तेल, पनीर, चीज, जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो चीजें आती है, मावा, स्वीट्स. So like whether you are eating the halwa puri, kheer, what you are doing, you are making the concentrated form of one type of food that comes in the rajasic category. और जो राजसिक कैटेगरी का फूड होता है, वो फूड अगर आप ज्यादा खाएंगे, then it will create some type of doshas in the body. And what are these doshas? The 3 main doshas which Ayurveda says, Vat, Pitta and Kapha. But अगर आपको ये समझ में आ जाए कि what is my body type, क्योंकि हमारे जो 12 signs हैं, zodiac signs, that 12 zodiac signs are divided among 4 elements. जैसे कि
1 second, I will share. Fire, water, earth, and air elements. These are the four elements in which all the 12 categories, all the 12 zodiac signs are divided. Aries, Leo, and Sagittarius are fire element signs. When fire element becomes imbalanced, it increases inflammation, cuts, and your nature will become short temper and impatient. Whatever I am saying, that is in general. कि in general, ये तीन sign will always come under the fire category, और इनमें हमेशा fire means पित्त एलिमेंट ज्यादा बढ़ता है. अब जब पित्त एलिमेंट ज्यादा बढ़ेगा, what will happen? It means your fire is imbalanced. Now there will be the inflammation, or quickly you are sensitive towards getting the fever. दूसरी चीज क्या होती है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस वाले, इन्हें हेडेक, डेंटल पेन, जॉइंट पेन, किडनी इश्यूज, इसकी तरफ these signs are sensitive. And if you know you आपका लग्न या राइजिंग साइन जो है, अगर ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, then some type of these kind of things can come in your life. It is not कि अभी इसी समय आएगा. Everything is not कि all the time you will have all those things. Depending on particular years, which is known as the periods, कि इस पीरियड में जब कोई उस प्लेनेट की महादशा अंतरदशा चल रही होती है, तो that will become severe. Otherwise, all these things will be in your body. Now, in the different form, it will come. Like ज्यादा फायर imbalance होगा, तो when you are in between the age of 18 to 25, there will be impatience, ambitions ज्यादा होगी. फिर 25 से जब 45 की एज में जाएंगे, तब फिर क्या होगा, धीरे धीरे टुवर्ड्स हेल्थ की तरफ सिचुएशन आएगी, प्रॉब्लमेटिक, और you will feel like you are not able to get a proper communication with your seniors. There will be something कि आपका अपने सीनियर्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं बन रहा है, और you are having some fights with the authorities. So whenever these planets becomes imbalanced, they give in this way. Now it's not necessary कि ये फायर एलिमेंट केवल इन तीन में ही रहेगा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में. जो हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, they are the earth element signs. But if sun and Mars, which represents the fire element, अगर वो प्लेनेट आपके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन को इन्फ्लुएंस करेंगे, then again what will happen? There will be the disturbance between the earth element and fire element. Now, what will happen? If they are not influencing, then these three signs indicates about the lethargy, slow to think and act. There will be resistance to change, money issues. इस तरह की चीजें अर्थ एलिमेंट वाले टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न में आती है. बट जब सन एंड मार्स का यहाँ पर आएगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इन्फ्लुएंस अ साइन इज गेटिंग फ्रॉम द प्लैनेट, उसके अनुसार यू विल स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस. तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देयर विल बी सम काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग. तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज पूरी खराब है, क्योंकि फायर भी हमें जरूरी चाहिए है, वाटर, अर्थ, एयर, सारे चारों एलिमेंट्स हमें चाहिए हैं. बट हाउ मच वी रिक्वायर, दैट वी नीड टू एनालाइज. एंड फॉर दैट, first of all, you need to understand what is your rising sign. If you are not aware of your rising sign, then you can check through your moon sign.
क्योंकि मून इंडिकेट्स अबाउट आवर इमोशंस। सबकॉन्शियस माइंड, हमारा मन है चंद्रमा, तो हम चंद्रमा के थ्रू भी इन चीजों को देख सकते हैं। But when we are looking from the rising sign or the ascendant sign, it will be like 80 to 100% the accuracy level will be there. When it is through moon sign, it will be like 80 to 100%, but through your thoughts. क्योंकि हम कोई भी काम बॉडी से भले करते हैं, पर हमारा मन भी उतना ही हमको इंस्पायर करता है। समथिंग वी डू बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस। इफ आवर इमोशंस आर नॉट ड्राइविंग देयर, वी विल नॉट डू। तो हमको वो कॉम्बिनेशन में देखना पड़ता है। नाउ द थर्ड थिंग कम्स कि वेदर यू आर अ पर्सन हु वर्क्स एक्टिवली विद द फिजिकल बॉडी और यू आर अ इमोशनल पर्सन। क्योंकि जो हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन है, these comes under the water elements. अब ये वाटर एलिमेंट वाले जो हैं, ये ज्यादा थॉट्स पर काम करते हैं। They will work less with their body, but they will work with their brains, or you can say with their thoughts. If their emotions will say anything, they will work, but इतने आसानी से फिजिकल एक्टिविटी ये नहीं कर पाएंगे। In comparison to this, Aries, Leo, Sagittarius are the people who can work with their body. क्योंकि फिजिकली एक्टिव होके इन पर्सन काम करना एरीज, लियो, सैगिटेरियस का नेचर है। और जो आजकल जो हमारा चल रहा है ना ऑनलाइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, these are the air elements and they can work very good in ऑनलाइन वर्क, जहां पर भी जल्दी जल्दी चेंजेस हैं, मल्टीटास्किंग काम करना है, वो ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब के अपने अपनी कहीं ना कहीं कभी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहेंगे, कभी आपके अपने लाइफ में देयर विल बी सम अदर इश्यूज। लाइक देयर इज अ वेरी कॉमन इशू, जॉइंट पेन। वी से after certain age most of the people feel joint pain. क्यों joint pain होता है? Because जो हमारे बॉडी में वात एलिमेंट है, when the वात element increases in the body, joint pain comes. Saturn governs the वात element. Now Rajasic, Sattvic, Rajasic and Tamasic. Again, this is the Tamasic quality, क्योंकि Saturn तामसिक खाने को इंडिकेट करता है। और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ सिचुएशन, लाइक बच्चे स्कूल जाते हैं, टिफिन में खाना लेकर जाएंगे, ऑफिस में हम जाते हैं, तो यू हैव टू ईट द फूड विच इज कुक्ड मोर देन 3 hours पहले से बना हुआ। तो हम लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ फूड। अब हम आते हैं फ्रूट्स पर। आप कहोगे कि फ्रूट्स भी तो हम खाते हैं। यस, फ्रूट्स भी आप खाएंगे, सैलेड्स भी खाएंगे, वो सात्विक क्वालिटी में जरूर आएंगे, बट अगेन ऑल दीज फ्रूट्स एंड द थिंग्स विच यू आर टेकिंग एज अ सैलेड, दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ वात, पित्त एंड कफ। उसमें अगर आपने डिवाइड नहीं करा कि आपकी बॉडी के अनुसार आपको क्या चाहिए, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक, तो आपको जब भी जॉइंट पेन अगर हो रहा है, वात एलिमेंट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो सैटर्न किस चीज को और गवर्न करता है? काली मिर्च, स्पाइस। तो जो काली मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर रात के खाने में थोड़ा सा यूज करना शुरू करिए। 1 pinch ऑफ ब्लैक पेपर इन योर डिनर। और जितना हो सके डिनर अगर आप फ्रेश खाएंगे तो क्या होगा? इवनिंग इज गवर्न्ड बाय सैटर्न। नाउ उस इवनिंग में आपने फ्रेश फूड खा लिया तो आपने सैटर्न की एक क्वालिटी को पैसिफाई कर लेंगे।
there will be the other quality when you will start taking the intake of black pepper. तब आपका क्या होगा कि सैटर्न से जुड़ी हुई जो वात एलिमेंट है, it will get pacified. The another good thing you will receive if you are going through any stuck situation in the life, because Saturn represents resistance. वो रेसिस्टेंस जो आपका अपनी लाइफ में है वो भी जाने लगेगा. जैसे हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, पैसा नहीं आ रहा है. सो पैसा नहीं आ रहा, इट itself indicates we are having some type of resistance. To release that resistance, you can start taking the black pepper. तो एक ब्लैक पेपर से आपकी कितने काम होंगे, हेल्थ में भी इट विल सपोर्ट यू, it will support you on your money issues also. Okay. Are you able to understand? कुछ इसमें क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने बताया उसमें? One minute. Yes, Rahul, please ask. मैम प्लीज एक बार आप सैटर्न का ये दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ब्लैक पेपर के साथ आपने कैसे रिलेट किया है इसको एक बार प्लीज. ब्लैक पेपर के साथ सैटर्न को? हाँ जी, नहीं आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि हम शाम को अगर खाने में अपना ब्लैक पेपर थोड़ा सा डालते हैं तो. सॉरी मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था इसलिए मेरा मिस हो गया. जो इवनिंग होती है रात, वो शनि को रिप्रेजेंट करती है. अब जब रात में आप काली मिर्च का पाउडर यूज करेंगे तो सैटर्न की एक क्वालिटी धीरे धीरे करके यू विल स्टार्ट पैसिफाइंग, बिकॉज ब्लैक पेपर इज गवर्न्ड बाय सैटर्न. Okay, so is this will also depend on the placement of planet in the chart? Yes, but अभी मैं इन जनरल बता रही हूँ, क्योंकि जो प्लेसमेंट और बहुत सारी चीजें रहती है उनका भी इफेक्ट आएगा. बट व्हेन यू आर टेकिंग अ स्मॉल इनटेक, तो इट इज नॉट डिस्टर्बिंग योर अदर एरियाज ऑफ लाइफ. ओके. अगर कैश फ्लो का इशू आ रहा है, अगर सैटर्न से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो. नहीं, सो हाँ जी, देखिए अगर जैसे कैश फ्लो का इशू आ रहा है तो यू आर लुकिंग फॉर द फ्लो. यू आर नॉट सेइंग कि मुझे ना पैसा नहीं मिल रहा है. यू आर हैविंग द मनी बट इट इज नॉट कमिंग टू यू. ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फ्लो को बढ़ाना है. और फ्लो को बढ़ाने का क्या तरीका रहता है, पानी को बढ़ा दीजिए, बिकॉज वाटर इज द वन एलिमेंट विच फ्लोज इजीली. तब हम क्या करेंगे कि वाटर एलिमेंट से रिलेटेड जो फूड है, लाइक यू कैन स्टार्ट हैविंग द कुकुम्बर, वाटरमेलन, राइस. दिन के समय में इंस्टेंट कुक किए हुए, वो 3 घंटे पहले के रखे हुए नहीं. तो सात्विक वाले फूड बट वाटर एलिमेंट के, देन कैश फ्लो विल इंक्रीज. बट इन जनरल अगर ये है कि हमारे को कैश मिल नहीं रहा है, वी आर नॉट गेटिंग द मनी और यू आर नॉट एबल टू गेट द रेज, दैट टाइम यूज द सैटर्न, क्योंकि वहां हमको उसको ब्लॉक को हटाना है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लियरिंग द ब्लॉकेज और आस्किंग फॉर द फ्लो. ओके मैम, थैंक यू सो मच. यस सीमा. Hi, good evening, Upma ji. Good evening. So, Upma ji, if I do have Sadesati, which I'm running, I'm Makar Rashi, and you must be knowing the pain of it already. But Upma ji, I have acidity issue also. तो ये पेपर खाने से वो नहीं, ब्लैक पेपर से एसिडिटी का इशू खत्म नहीं होगा, क्योंकि एसिडिटी इज गिवन बाय द सन एंड मार्स. ओके, बट वो एग्रीवेट नहीं हो जाएगा पेपर, क्योंकि तीखा खाती हूँ तो एग्रीवेट हो जाता है. इसीलिए तो बोला कि ये ब्लैक पेपर से इसका काम नहीं बनेगा एसिडिटी का. राइट राइट. फॉर एसिडिटी, बिकॉज पित्त एलिमेंट ज्यादा है, तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to increase the earth element, then only this acidity issue will get pacified. तो जो earth element को represent करते हैं
वो वाले खाना आपको थोड़ा सा उसका इंटेक करना जरूरी है। Like root vegetables and stuff, is that correct? थोड़ा सा हल्दी ले लो ना, Right. Okay. Okay. Yeah, that that's the will best. work. Yes. Thank you. बाकी Thank you. if you want to know about the details, wait for Yeah. some time. I am going to give you Sure, many more details about these things. Sure, Upmaji. Thank you. Thank you. Okay. Yes. So, any other question or shall I move further? Okay. So, to understand how this food will help us, first, you need to check the sign. What is your rising sign or what is your moon sign? Whatever is the particular sign which dominates you, write down that sign. Then secondly, understand what your body element is. If it is the fire element more predominant, earth, air, water, कौन सा ज्यादा है? कोई एक एलिमेंट हमारी बॉडी में हमेशा ज्यादा होता है एंड रेस्ट 3 आर कम कम करके होते हैं. We have all the 4 elements, but one element dominates us. Then correlate the food with the 3 qualities, सात्विक, राजसिक and तामसिक. जब आप ये सबका एनालिसिस कर लेंगे, then you will be able to understand कि मुझे क्या चीज खाना चाहिए. फिर उस खाने को आप अपने हिसाब से मॉडरेट क्वालिटी में you can divide, like in breakfast I can have this thing, in the lunch dinner you can have these things. क्योंकि जैसे दिन है हमारा जो डे टाइम है it is governed by sun and evening are governed by Saturn. ठीक है, तो इस तरह से आप सन एंड सैटर्न को देख सकते हैं. फिर इसके अलावा आपको जो प्लैनेट्स का देखना है अलग अलग तरीके से, तो लाइक what type of issues you or any family member is going through. Like if someone is having the communication related issue or lack of concentration, both these things are comes under Mercury. जब आपका बुध खराब होगा तो कम्युनिकेशन में आप जैसा कम्युनिकेट करना चाहते हैं you won't be able to do. You will be diverted in many things, but concentrating on one subject will be difficult. बुध को रिप्रेजेंट करने वाली जो चीजें होंगी, we will start taking the intake of that. तो इस तरह से आप ये चेक कर लेंगे. अब बुध कौन से दोष को रिप्रेजेंट करता है? 3 दोष, जो हमारे वात पित्त कफ है. All 3 doshas in together comes under Mercury. So if anyone is having the Gemini sign, they will be sensitive towards all these 3 doshas. तो वहां पर जो भी चीज होगी अचानक से एकदम से कोई भी परेशानी बॉडी में आएगी, लाइफ में आएगी, and by doing some remedies you can easily pacify that dosha. But earth element वाली जो चीजें हैं जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर चीजें धीरे धीरे अक्यूमुलेट होकर परेशान करती हैं. आपको कोई भी चीज इंस्टेंटली परेशान नहीं करेगी, बट इट विल आल्सो टेक टाइम टू पैसिफाई. तो आपको वो चेक करना होगा कि हमारी लाइफ में किस तरह की सिचुएशन से आई एम डीलिंग विद. फॉर योर करियर, लाइक आपको जॉब में कोई दिक्कत है, बिजनेस है, बट बिजनेस में यू आर नॉट एबल टू गेट द क्लाइंट्स और you are not able to get the money from your clients. क्योंकि कई लोग जो बहुत सारे healers हैं, not able to speak about their fees, very good in giving the healings, but not able to ask. तो वहां पर क्या होगा कि जब आप अपना ही पैसे के बारे में बोल नहीं पा रहे हो, communication related issues will be there.
आपका थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो हम फिर ऐसे में क्या करेंगे, बिकॉज टॉरस साइन रूल्स ओवर वोकल कॉर्ड्स, तो टॉरस साइन से रिलेटेड जो फूड आइटम है, यू कैन स्टार्ट टेकिंग दोज फूड आइटम्स इन द इवनिंग, ताकि आप बोलने का काम कर सको। इफ यू आर गिविंग सम प्रेजेंटेशंस, उसमें आपको लगता है कि you are not having the confidence to give the presentations, तब आप टॉरस से रिलेटेड करिए। तो आपको चाहिए क्या है, फर्स्ट वी नीड टू गेट द क्लैरिटी ऑफ दैट, देन बेस्ड ऑन दैट वी विल बी एबल टू एनालाइज कि हाँ मुझे ये वाला फूड, इसकी ये वाली क्वालिटी, इसका ये वाले प्लेनेट का जिस पर रूलरशिप है, आई कैन हैव दिस, ये मुझे 50% चाहिए, ये 60% चाहिए, ये 80% चाहिए। सीमा जी, ये जितनी भी चीजें हैं मैं सारा बताऊंगी आपको कि क्या मरकरी से रिलेटेड है, क्या टॉरस से रिलेटेड है। बहुत सारे हमारे फूड आइटम्स हैं, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि वन फूड आइटम विच इज कमिंग फॉर द टॉरस, इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट फॉर मरकरी। मरकरी के लिए कुछ और होगा, टॉरस के लिए कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ हमारे एस्ट्रोलॉजी में हमको सभी चीज को देखकर चलना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द only for the health purpose. If I have to talk about only the health purpose, it will be very easy, but I am looking more beyond that. क्योंकि जो मैं अपने consultations में, like I say, eat the beetroot. बीटरूट अगर आप खा रहे हो, तो बीटरूट खाने से आपका जो प्रोकास्टिनेशन है, it will get pacified, and procrastination is the one thing जो 80% लोगों के में होता है। ठीक है, तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन अदर प्लैनेटरी सिचुएशन ऑल्सो, क्योंकि कुछ लोगों का प्रोकास्टिनेशन रहता है और कुछ लोग प्रोएक्टिव रहते हैं, तो ये दोनों ही सिचुएशन इज नॉट गुड, एंड देयर आर फ्यू हु विल नॉट लिसन व्हाट वन इज सेइंग। आधा सुनकर वो रिएक्ट कर देंगे, तो आधा सुन के आप जब रिएक्ट करोगे, यू विल बी नॉट एबल टू गेट द एप्रिसिएशन यू आर लुकिंग इन द टीम। तो आपको अपनी टीम में क्या चाहिए, फैमिली में, रिलेशनशिप में क्या चाहिए, वहां पर क्या परेशानियां आ रही हैं, ऑल दीज कैन बी ट्रीटेड जस्ट थ्रू फूड। ओके, सो यू वांट टू नो ऑल दीज थिंग्स। Okay. To know all these things, I am going to do a 2 days astro diet workshop, and in this 2 days astro diet workshop, I will explain a brief introduction about zodiac sign. 12 राशियां क्या होती है, उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, so that when you will start working on this, you can understand कि क्या है इसमें। आपको हर साइन का क्या क्या बिहेवियर है, नेचर, एलिमेंट, स्टाइल ऑफ वर्क ऑफ प्लैनेट्स किस तरह से रहेगा। लाइक वीनस, वीनस इज अ प्लैनेट which comes under Kapha element, and it gives us the it has the rajasic quality, it gives the happiness. तो आपको अपने रिलेशन में हैप्पीनेस चाहिए, लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वीनस से रिलेटेड फूड आप खाइए, बट साथ में देखिए कि क्या आपकी बॉडी में कफ एलिमेंट है। अगर कफ एलिमेंट की अधिकता है, इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग lot of issues related to kapha element, like you are thinking about losing weight, क्योंकि जो बॉडी में वेट बढ़ता है, जो फैट है, फैट इज गवर्न्ड बाय, फैट कम्स बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ जुपिटर एंड वीनस। तो अब जुपिटर और वीनस को इम्बैलेंस जो है, उसको हम कैसे ठीक करें, खाने में हम किस समय क्या चीज खाएं,
उसके according to the nature of planets, style of their work, we will understand. Then relationship of zodiac sign and food, जैसे ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी बात है, हम सब खाते हैं सुबह में भीगे हुए बादाम, आलमंड्स. बट उसके अलावा if you are eating it in a different time of the day, how it will correlate with your zodiac sign, how the almonds or cashew nuts can help you to get the happiness from your relationship. उसको कैसे देखें ये भी हम सीखेंगे. फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फूड फॉर एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स. अब यहाँ पर आपका अगर बॉडी वेट ज्यादा है and you are looking to lose the weight but also looking for the happiness through relationship, तो ऐसे में आपको वीनस से रिलेटेड फूड आइटम तो खाना है, बट उसके साथ जो मिलने वाला जो है कफ की अधिकता वो नहीं कर चाहिए. तब हम क्या करेंगे? You can have some cashew nuts but avoid the पनीर काइंड ऑफ कंसंट्रेटेड मिल्क आइटम, क्योंकि जितने भी कंसंट्रेटेड मिल्क आइटम होते हैं दे कम्स अंडर द वीनस लाइक चीज. ठीक है, तो जो केवल प्योर दूध है दैट विल कम इन मिल्क, बट व्हेन इट इज इन अ कंसंट्रेटेड फॉर्म इट विल बिकम वीनस. तो कैसे फूड को कुछ बनाकर आप उसका गवर्नेंस ऑफ प्लैनेट ही चेंज कर देते हैं. तो अकॉर्डिंग व्हाट दैट आल्सो वी विल लर्न. कोरिलेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड फूड विद आयुर्वेदा ह्यूमर्स. वात पित्त कफ, कौन कौन से फूड से हमें वात पित्त कफ एलिमेंट बढ़ते हैं. अब जो ये वात पित्त कफ है, those who are already aware of Ayurveda, they know according to the season, वात पित्त कफ हमारी बॉडी में सीजन के अनुसार चेंज होता रहता है. लाइक इफ योर जोडियक साइन कम्स अंडर द फायर एलिमेंट, वो हमेशा रहेगा, वो आसानी से जल्दी चेंज नहीं होगा. बट वात पित्त कफ जो है डिपेंडिंग ऑन द सीजन इट विल चेंज. तो ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल learn to work on that also. लिस्ट ऑफ फूड इंडिकेटिंग द लॉर्डशिप ऑफ प्लैनेट्स ओवर इट. जैसे अभी मैंने 2-3 चीजों का बताया, ऐसे इन क्लास आई विल गिव यू द लिस्ट. फूड फॉर हीलिंग एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट्स एंड जोडियक साइन. तो आपका कोई भी ऐसा इशू जो चल रहा है कि लंबे समय से, जैसे कि एंगर, डिप्रेशन, not able to get something good in the life, you are feeling like कि जहां भी हम जो भी काम करते हैं I am not able to get success. तो ये सारी चीजों को आप अपने फूड में कहाँ चेंजेस लाकर you can इसको आप हीलिंग की तरह यूज कर सकते हैं. तो here ailment I doesn't mean related to only the health issues, because health एक पार्ट है बट इसके अलावा बहुत सारी भी चीजें हैं. एंड व्हेन एवरीथिंग इन जनरल बिकम्स टुगेदर अच्छी होती है, देन ओनली वी आर एबल टू गेट गुड थिंग्स इन द लाइफ. तो खाने से हम ये सारी रेमेडी करेंगे. दिस एस्ट्रोडाइट 2 days वर्कशॉप विल बी ऑन 18th and 19th June 7 to 8:30 PM 2 days Zoom पर होगी. PDF course material like always I will share. Recording also you will get, and your analysis of your chart and suggestion कि आपको क्या आपके बर्थ चार्ट के अनुसार क्या चीजें आपको रोक रही है या क्या इश्यूज आपको लाइफ में आ सकते हैं और क्या आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए या किसी दूसरे फॉर्म में कैसे, दैट आई विल शेयर. व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उसमें कॉमनली देयर विल बी अ सपोर्ट फॉर 6 months. एंड अगर आप ये अभी ज्वाइन करना चाहते हैं
तो till today 10 p.m. this is for rupees 3,333 3333, and after 10 p.m. this will be for rupees 5,111. Okay, now you इसके जो लिंक वगैरह आपको चाहिए that I will share in the group. If you have any question related to that, I will answer. Okay. Yes. Yes, Rahul ji, बोलिए. मैम ये 18th और 19th के अलावा आप दोबारा कोई सेशन प्लान करेंगे? बिकॉज मुझे करना है बट आई एम ट्रैवलिंग आउट ऑफ टाउन. अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो 18th एंड 19th का ही है. तो ये दोबारा आप नहीं, इस कोर्स को दोबारा नहीं करेंगे? मतलब करेंगे बट नॉट सो सून. ओके. Whenever I will do, क्योंकि कम से कम कोई एक कोर्स को करते हैं तो आफ्टर 2 months ही वापस से उसका चांस बनता है ना. अच्छा, तो अगर मैं कर लूं फिर रिकॉर्डिंग्स अगर सुन लूं तो उससे हो जाएगा कि Yes. आई विल मिस? Yes, through recordings you can take, and फिर आपके देखने पर जो भी questions रहते हैं you can ask in the group. ओके मैम. Ma'am, I can't attend one day. That is on 18th. 19th, I think I can attend. Chalega na? हाँ चलेगा. Because I'm as it is doing the astro course also. So, Yes. हाँ. So will this get Saturday, covered Sunday in? है. I know. Will this be covered in the astro course or no? No, this won't be covered in the astro course. जो astro course आप कर रहे हो, that is जी. proper prediction वाला astro course है. And this I had made like कि astrology में हम चीजें सीखते हैं, but we don't go in one area of this. वहाँ पर हम remedies में बहुत सारी दूसरी remedies सीखेंगे, but here we are completing how food can change our life. Okay, ma'am. So I will register tonight. Sure. Thank you. अभी जैसे ऑनियन, गार्लिक, ये ऐसे जो फूड्स हैं, ये नॉर्मली किसके अंदर आएंगे? राहु केतु के अंदर. अब ये जब राहु केतु के अंदर आते हैं तो हमें मालूम है कि राहु एंड केतु, दीज आर द 2 मिस्टीरियस प्लैनेट जो हमको कहीं ना कहीं परेशानी देते रहते हैं. ठीक है, आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज में दे गिव यू प्रॉब्लम्स, बट व्हेन यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, केतु सपोर्ट्स यू. इसलिए आप देखते हैं कि जो साधु होते हैं और द वन हु आर लुकिंग फॉर देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो ज्यादातर ऑनियन, गार्लिक नहीं खाते हैं बिकॉज ऑफ दैट. वो जो उनका जो स्मेल रहता है, और यू कैन से कि ये प्लेनेट के रीजन से बॉडी के वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं. तो हाउ यू कैन रेज योर वाइब्रेशंस, दैट आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द फूड, कि हमारे को कौन से फूड से हमारे वाइब्रेशन चेंज हो सकते हैं. लाइक मिर्ची, there are 3 types of chilies. We have green chili, red chili and black chili. काली मिर्च, black pepper. तो जो हरी मिर्च है, that green chili, directly it comes under the Mercury planet. Okay. अब Mercury planet में वो आ गई है, but क्या वो आपके कम्युनिकेशन वाली चीजों को सुधारेगी? Not really. यहाँ पर ग्रीन चिली क्या करती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मर्करी एंड मार्स. तो अब ये मर्करी एंड मार्स का जब कॉम्बिनेशन बन गया है, सो वेयर एवर यू आर लुकिंग फॉर एक्टिव, कुछ आप लिखने का काम करना चाहते हो और जिसमें आपको तेजी से लिखना है या फिजिकल एक्टिविटी वाली चीजें करनी है, उसमें ये ग्रीन चिली आपको काम आएगी. बट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द कॉन्फिडेंस कि आप जाकर कुछ कहीं बोल सके, तो वो रेड चिली काम आएगी.
इसका ये मतलब नहीं है कि खूब सारी खा लेना, एवरीथिंग इन अ मॉडरेट क्वालिटी, क्योंकि जब आप ज्यादा खाएंगे तो वो प्लेनेट को यू विल मेक इम्बैलेंस। तो हम जब बात करते कि खाने में ये चीज होना चाहिए, इट इटसेल्फ मीन्स हाफ पिंच और मैक्सिमम 1 पिंच, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा चलिए एक चीज और मैं बता देती हूँ। हेयर फॉल बहुत सारे लोगों की परेशानी है। हेयर फॉल क्यों होता है, किसी को मालूम है? एनी प्लैनेटरी, आप लोग सोच सकते हैं? हमारा जो मार्स प्लैनेट है, व्हेन अवर मार्स इज इम्बैलेंस्ड, हेयर फॉल अपीयर्स। ठीक है, बाल काले हैं तो वो शनि उस तरह से भले हो जाएगा काले के रीजन से, बट शनि बालों को हेयर फॉल नहीं करवाता है। हेयर फॉल इज डन बिकॉज ऑफ imbalance of Mars. So if you like to, आप बैलेंस करना चाहते हो, रोकना चाहते हो अपने हेयर फॉल को, तो आपको अपने मार्स को ठीक करना पड़ेगा। पर यहाँ पर वो लाल मिर्च काम नहीं करेगी, यहाँ पर मार्स से रिलेटेड जो दूसरे फूड हैं, यू हैव टू लुक फॉर दोज थिंग्स लाइक ऑयल, क्योंकि यहाँ पर ऑयल बेस्ड जो फूड रहेगा सॉरी, वो आपको काम करेगा। तो इस तरह से यू हैव टू सी कि हमारे को क्या चीज चाहिए, किस तरह से हम उसे यूज करें। ओके, एनी क्वेश्चन? गौतम जी, ये लिटिगेशन और ऐसी ही बड़ी बड़ी चीजें वो पर्सनल कंसल्टेशन के हिसाब से हैं, यहाँ के इसमें मैं नहीं बता सकती हूँ। और फूड से हम उसको चेंज कर सकते हैं, पर इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ओके, यस। Gum, teeth problem, fermented food. I will answer all these questions in the class. क्योंकि ऐसे अगर हम करने गए तो it will take lot of time. तो आप अपने ना सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए और उसको फिर आप क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, I had shared the Instamojo link in the group, और मैं अपना पेटीएम नंबर वगैरह भी I am sharing there. आप ये कर लीजिए and I am waiting to see you in workshop, 2 days workshop. ठीक है, workshop से related any other question if you have, please ask. Okay. I hope आप लोगों को ये छोटा सा मास्टर क्लास अच्छी लगी होगी। Ma'am, it is 3333, right? Yes, 3333. Thank you. Okay. If anyone is having asthma, half pinch of black pepper and half pinch of cinnamon powder can be used. Okay. Yes. So see you in the workshop. Take care. If you are not having any question, let's close the master class. ठीक है, हम एक बार अस्थमा का रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला अस्थमा के लिए? अगर अस्थमा है तो आधा पिंच काली मिर्च पाउडर और आधा पिंच दालचीनी पाउडर खाने में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।
Okay. Okay. So, see you. Take care. Bye. 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 Thank you, Upma ji. Bye. Thank you. Thank you. Bye, ma'am. I'll text you. See you. Yes. Bye. Bye. Okay, Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Take care. Bye. Thank you, ma'am. Ma'am. Thank Bye.